Hello student, in the previous video we will study about the electron and cathode rays. So this is the device, that is cathode ray tube. With the help of this tube, when we adjust the cathode beam, in absence of magnetic and electric field, it focus at the point B. When we apply electric field, it focus at different point A or C. And then when we applied only magnetic field, again it disturbed from its position B. And then we adjust electric and magnetic field in this way that it again focused at the B. At this time we will calculate different calculations. You will do that in class 12th in physics in cathode ray tube experiment. So here we established E/M ratio with the help of this one, and then we calculate mass of electron and charge on electron. So Sir J.J. Thomson established all the things. And as we already discussed, electron having the mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and it is the smallest unit charge, so it's also considered as electrostatic unit, that is 1 ESU. So by this cathode ray tube, Thomson deduced E/M ratio, and with the help of this he gave certain other facts also, that if we change gas or cathode material in cathode ray tube, there will be no change in E/M ratio for the cathode rays. And he calculated it equal to 1.758820 into 10 raised to power 11 coulomb per kilogram. So he said that electrons are fundamental particle of all type of elements, right? E/M ratio, हम ट्यूब में कोई भी गैस लें या हम ट्यूब में कोई भी कैथोड जो है या एनोड का मटेरियल बदल दें, तो ये नेचर इनकी चेंज, E/M रेशियो चेंज नहीं होता है, नेचर चेंज नहीं होती. इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल हैं, यानी कि एसेंशियली प्रेजेंट हैं. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन deduced by the Millikan by oil drop experiment. Again you will study that in class 12th in physics, and with the help of the calculation, that is Me is equal to E by the calculated by Millikan, E/M by the cathode ray tube. So we calculate mass, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So in this way we establish that cathode rays made up of electrons, right? अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो उसी ट्यूब में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके देखने पर पता चला कि उसमें और प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं. ठीक है, अब आपने क्या किया, एक परफोरेटेड कैथोड लिया, और जब ये रेज यहां से निकलती हैं कैथोड से, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए. अब जब ये आपने कैथोड लिया, नेगेटिवली चार्ज, एंड दिस इज एनोड, राइट, तो कैथोड रेज यहाँ से निकलती हैं. अब इसमें एक चीज़ आपको और देखनी पड़ेगी, कैथोड रेज यहाँ से निकलती हैं, जो गैस यहाँ प्रेजेंट है उसको आयोनाइज करती हैं. सपोज ए गैस है, स्ट्राइक ओवर दिस एंड चेंजेस इनटू A पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकलते हैं नोन एज प्राइमरी कैथोड रेज बनाते हैं, और जब ये इस गैस पार्टिकल से टकरा के इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ मिक्स हो जाते हैं और मिलके कैथोड रेज बनाते हैं, बट दे नोन एज ए secondary cathode rays. They all are similar or alike to each other. That means the electron is a fundamental particle of each and every element. जब हम परफोरेटेड कैथोड लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैथोड चूंकि निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं दे मूव टुवर्ड्स दिस वन. अगर ये परफोरेटेड होता है और यहाँ पर हम हाई फील्ड जनरेट करते हैं, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाते हैं, तो यहाँ भी हमें एक तरह की रेज नजर आती हैं. और जब हम इनको स्टडी करते हैं तो दे शो ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर जस्ट लाइक द कैथोड रेज, एक्सेप्ट वन दैट इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे मूव टूवर्ड्स द negatively charged electrode. That means these made up of positive
पार्टिकल्स। बाकी लाइट पेडल व्हील्स को भी मूव करती हैं, शेडो भी बनाती हैं और वेव नेचर भी शो करती हैं। इसका मतलब ये जो रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम इनका EYM रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस बदलने के साथ EYM रेशियो चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेज हैं इस ट्यूब में जो हमने गैस ली है उसके पॉजिटिव आयंस की बनी हुई हैं। जब हम गैस हाइड्रोजन लेते हैं तो H+ आयन की बनी होने की वजह से सबसे ज़्यादा EYM रेशियो की वैल्यू आती है। E चार्ज वही 1 और 2 यूनिट और M मास चूंकि H+ सबसे हल्के होते हैं, दिस इज द रीज़न EYM की वैल्यू हाईएस्ट आती है। इसलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल माना गया और इसको प्रोटॉन माना गया। यानी कि जब हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं इतने हाई वोल्टेज पे वो फर्स्ट वो एटोमाइजेशन होता है एंड देन आयोनाइजेशन होता है। सो H+ के ही बाकी जितनी भी गैसेज हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनके मास H के मल्टीपल में होते हैं। दैट मीन्स इट इज़ ए fundamental particle and it is positively charged and it is given the name as proton by Goldstein. And on further studying of that one, he decided that these protons are having positive charge, 1 unit positive charge, and charge is equal to the charge of electron but opposite in nature. These rays, positive rays, also known as canal rays, because when they pass from the perforate cathode they take the shape of canals. You study that in class 9th. So they also known as canal rays. They are positively charged, so they named as a positive rays also. After discovery of proton and neutron, important question ये था कि ये इतने छोटे एटम में कैसे प्रेजेंट हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, फिर प्रोटॉन की, उसके बाद थॉमसन्स का मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। बट हियर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। व्हेन चैडविक बम्बार्डेड बेरिलियम शीट विद अल्फा पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन 4Be9 बेरिलियम फॉइल, अल्फा पार्टिकल का जब बॉम्बार्डमेंट कराया, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे 2 यूनिट चार्ज होता है पॉजिटिव और 4 यूनिट मास होता है। तो एक कार्बन का पार्टिकल बना और एक नया पार्टिकल मिला जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। इट्स सिंबल इज 0 and 1. 0 मीन्स पॉजिटिव, नो चार्ज इज देयर, एंड 1 इज 1 यूनिट मास। तो ये मास में प्रोटॉन के बराबर होता है लेकिन चार्ज इस पे कोई भी नहीं होता, ठीक है। बट इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड मॉडल के बाद हुई है। सो अप टू दिस you have to focus on that part. You have 2 particles in your hand, one is electron and another is proton. So this is the table in which all 3 are discussed, that is electron, proton, neutron, their symbol, their charges, their relative charges, mass in AMU, that is AMU से related mass, and approximate mass. Now come to the atomic model. First model given by the Sir J.J. Thomson model, right? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दोनों ही स्टेबिलिटी को एटम की को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए ये डिस्कार्ड हो गए। लेकिन फिर भी हम इनको स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थॉमसन्स मॉडल पहले हम पढ़ते हैं। थॉमसन्स मॉडल 1898 में प्रपोज किया, बहुत सिंपल मॉडल है। उन्होंने कहा एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम स्फेरिकल क्यों? क्योंकि स्फेयर का गिवन वॉल्यूम के लिए स्फेयर का सरफेस एरिया कम होता है। दिस इज द रीजन ऑल प्लैनेट्स, ऑल पार्टिकल्स, फ्री फ्रूट्स, इन सबकी सरफेस जो है वो कर्व्ड होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एटम स्फेरिकल साइज का होता है, रेडियस अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर की होती है, एंड इट इज फुल्ली फिल्ड विद पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड हियर एंड देयर, एंड amount of positive and negative charge is equal, so they maintain the electrical neutrality. लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि they are present in close vicinity, even then they are not disturbing to each other. Now what is the reason behind it? So this is the main drawback of the Thomson's model. He compared his model with plum pudding model, raisin or watermelon etc. कि watermelon में जैसे रेड पार्ट होता है उसको यहाँ पॉजिटिव पार्ट कहा, और सीड्स वाटरमेलोन में जिस तरह से एम्बेडेड होते हैं उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा।
तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस मॉडल यही है कि उन्होंने सबसे पहले, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन कि उन्होंने ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्लोज विसिनिटी में प्रेजेंट हैं, तो कोई ना कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, राइट? दिस इज द रीजन we are studying the Thomson's model. Thank you.